दिस इज प्री सेंट्रल गाइड. ये जो सेंट्रल सल्कस है, तो और यू नो इट हैज गॉट सो मेनी कन्वोल्यूशंस, गाइरे एंड सल्साई. ओके, सो जो एलिवेशन है दैट इज नोन एज गाइराई. ओके, सो दिस प्री सेंट्रल, ठीक, so this pre-central gyrus, the motor area is present in this, and post-central gyrus, that is in parietal lobe, the sensory area is present. Okay, so this part is pre-central gyrus is motor area, and post-central gyrus is sensory area. So whatever the information is coming from the periphery, there, this is 3, 1 and 2, 5 and 7. Later on, we will study in detail. Okay, so the motor area is present in the pre-central gyrus, that is in frontal lobe, and post-central gyrus, sensory area is present. Okay, so whatever the information is coming from the periphery, it will come to the sensory area. Today we will read about the ascending tract. Ascending tract has got so many names. क्या क्या है? Sensory pathway, afferent, afferent path, sensory pathway, afferent pathway. Okay, so this is all ascending tract. So this sensory pathway has got 3 names: ascending tract, afferent pathway, and ascending tract. Ascending, sensory, and afferent, AFFE. Okay, and here is the one Sylvian fissure. This is known as lateral sulcus. So this divides frontal lobe and parietal lobe with temporal lobe. Okay, अभी हम लोग दो ही के बारे में पढ़ेंगे. Central sulcus divides frontal lobe and parietal lobe, and this Sylvian fissure, also known as lateral sulcus, this lobe. Okay, you all know the parts of the brain. So ये forebrain हो गया, diencephalon है. Diencephalon में क्या आता है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये सब आता है. Then midbrain है, then pons medulla in front and cerebellum behind constitutes the hindbrain. और ये तीनों जो एक अलाइनमेंट में है, midbrain, pons and medulla, ये constitute करता है brain stem. It constitutes brain stem. So roughly you should know. Okay, then ये जो हम लोग सब पढ़ते हैं कि transverse section of spinal cord, this is very important because the butterfly shape which is present, just a minute. Okay, now here you can see the butterfly shape. Okay, so you can see this, that this is gray matter. Okay, so now you can see in transverse section of spinal cord, you can see that this is gray matter and this is white matter. ठीक है, ये जो gray matter है, it is divided into 3 parts.
पोस्टीरियर फ्यूनिकुलस। अब हम लोग जानेंगे कि पोस्टीरियर पार्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और एंटीरियर पार्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। इन दिस एंटीरियर पार्ट दिस फिशर इज प्रेजेंट, इन द पोस्टीरियर पार्ट सेप्टम इज प्रेजेंट। ओके, और यहाँ पे है हम लोगों का fasciculus gracilis और fasciculus cuneatus। ओके, और lateral में there are lateral spinothalamic tract, spinocerebellar and anterior and posterior spinocerebellar tract, और यहाँ पे है anterior spinothalamic tract। So roughly when we are reading about the ascending tract, हम लोग को याद रखने का है कि dorsal column में दो ट्रैक्ट है, fasciculus gracilis and fasciculus cuneatus, fasciculus gracilis and fasciculus cuneatus। then lateral side में यहाँ पे dorsal spinocerebellar tract and ventral spinocerebellar tract, और एक और भी नाम हम लोग याद रखेंगे, lateral spinothalamic tract। ये जो spinothalamic है दो है, वन इज लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो प्लेस्ड है लैटरल फ्यूनिकुलस में, और एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो प्लेस्ड है एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो प्लेस्ड है एंटीरियर फ्यूनिकुलस में। तो अभी तक से तुम लोगों को पता चल गया कि जो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है ये ग्रे मैटर है बटरफ्लाई वाला, और जो व्हाइट मैटर है इसमें पोस्टीरियर फ्यूनिकुलस, यहाँ पे fasciculus gracilis एंड fasciculus cuneatus दो पाथवे है जिसको हम लोग बोलते हैं डॉर्सल कॉलम या मीडियल लेमिनिस्कस, डॉर्सल कॉलम या मीडियल लेमिनिस्कस। ओके, कभी कभी बोल देंगे कि राइट अबाउट द मीनिंग को पता होना चाहिए कि डॉर्सल कॉलम इज आल्सो नोन एज दे फॉर्म मीडियल मेनिस्कल पाथवे। ओके, देन in the lateral side you should remember dorsal spinocerebellar and ventral spinocerebellar। इसके अलावा एक और भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, that is lateral spinothalamic tract, और यहाँ आगे में है anterior spinothalamic tract। जब लोग कहते हैं ये देखो anterior lateral यहाँ दोनों मिला करके लिया है, बट इसका anterior lateral spinothalamic pathway भी बोल सकते हैं। So roughly how many ascending tract you should remember? Dorsal column इसमें आएगा fasciculus gracilis और fasciculus cuneatus जिसका नाम है tract of Gall and tract of Burdick जो present रहता है dorsal funiculus में। Okay, then ये जो anterior lateral spinothalamic pathway है it is present in the anterior part and lateral। Okay, then dorsal spinocerebellar and ventral spinocerebellar। रफली यदि हम लोग याद करेंगे तो ये जो fasciculus gracilis है और ये fasciculus cuneatus है, they carry fine touch, they're highly specialized, और इसका डिस्क्रिमिनेशन फाइन क्वालिटी का होता है, they carry fine touch। जो lateral spinothalamic tract है, lateral spinothalamic LPT याद रख लो, they carry pain, lateral spinothalamic tract carry pain sensation, and anterior spinothalamic tract carries crude touch and pressure। और ये जो dorsal spinocerebellar है and ventral spinocerebellar है, they carry unconscious proprioception, they carry unconscious proprioception। So, यदि ascending tract का नाम हम लोग को याद करना है तो हम लोगों को डॉर्सल कॉलम भूलना नहीं है, उसमें fasciculus gracilis है, fasciculus cuneatus है। इसमें भी fasciculus gracilis जो है वो मीडियली प्लेस्ड है, fasciculus gracilis जो है वो मीडियली प्लेस्ड है, और fasciculus cuneatus जो है वो लैटरली प्लेस्ड है। fasciculus gracilis और ये जो डॉर्सल कॉलम है और ये जो एंटीरियर लैटरल स्पाइनोथैलेमिक पाथवे है, दे कैरी कॉन्शियस proprioception, they carry and dorsal spinocerebellar and ventral spinocerebellar, they carry unconscious proprioception, they carry unconscious proprioception। इसमें अब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है
एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर हॉर्न है, ये है पोस्टीरियर हॉर्न, सॉरी दिस इज पोस्टीरियर हॉर्न एंड दिस इज एंटीरियर हॉर्न। ये जो पोस्टीरियर हॉर्न है इट इज सेंसरी और एंटीरियर हॉर्न जो है वो है मोटर। दिस सुनने से लगता कि पता नहीं क्या है, लेकिन इट इज इनटू सिंपल लाइंस। द posterior horn is sensory, whereas this anterior horn is motor, and this is known as Bell-Magendie law। तो अभी तक से हम लोग को पता चल गया कि जो स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसफर सेक्शन है ये जानना हम लोग को बेहद जरूरी है। और ग्रे मैटर में तो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है और इसमें जो है पाथवेज प्रेजेंट रहते हैं, पाथवेज प्रेजेंट रहते हैं। तो डॉर्सल कॉलम में क्या क्या पाथवे है? fasciculus gracilis carries fine touch। यहाँ पे lateral spinothalamic tract है, it carries pain and temperature। anterior spinothalamic tract है, it carries crude touch and pressure। और ये dorsal spinocerebellar and ventral spinocerebellar है, it carries unconscious proprioception। it carries unconscious proprioception। अब हम लोग ये जो रफली है दिस इज फॉर कंपैरिजन, दिस इज फॉर कंपैरिजन, लेकिन इसको हम लोग पहले इंडिविजुअली देख लेते हैं। ये तुम्हारा देख लो दिस पाथवे, और इट इज नॉट क्लियर दिस पाथवे। ये जो पाथवे है यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये इमीडिएटली इट इज नॉट क्रॉसिंग, ओके, इट इज क्रॉसिंग इन द मेडुला, इट इज ये जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आया इट इज इमीडिएटली क्रॉसिंग। तो ये सबसे पहला डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, इसमें वी आर लर्निंग अबाउट द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ऑफ द एंटीरोलैटरल पाथवे एंड डॉर्सल कॉलम, दैट इज मीडियल लेमनिस्कल पाथवे। नाउ दिस डायग्राम, सो दिस इज क्लियर। इसके पहले हम लोग जाएंगे इसमें, ये जो है एंटीरोलैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है। यहाँ पे जो फर्स्ट और इसके पहले भी हम लोग जाएंगे इस बेसिक ये में, ये एक रफली डायग्राम है, रफ डायग्राम है। ये इट इज शोन दैट fasciculus gracilis and fasciculus cuneatus। gracilis हम लोग याद कर सकते हैं ग्राउंड, it means the fibers which carry fine touch, they are coming from the lower limb, they are coming from the lower limb and they are medially placed। दोनों ही fine touch है। तो लेकिन gracilis क्या करता है? ground means it carries lower trunk extremity, whereas cuneatus from the upper extremity। posterior spinocerebellar, anterior spinocerebellar and lateral and anterior spinothalamic tract। okay, then coming to this, सबसे पहले हम लोग जब कोई पाथवे पढ़ते हैं तो इसका 3 सेगमेंट या 4 सेगमेंट होता है कि पहले कहाँ से अराइज किया। तो ये रिसेप्टर्स तुम लोग काफी कुछ जान चुके हो। ये जो रिसेप्टर स्पाइनल कॉर्ड में, ये कहाँ रिले करता है? स्पाइनल कॉर्ड में। सो यहाँ से यहाँ तक बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। देन second order neuron arise from here and it crosses to the, ये जो सेंट्रल कैनाल है इसके साइड से जाता है और laterally ऑक्यूपाई हो जाता है। ओके, laterally ऑक्यूपाई हो जाता है और एक न्यूरॉन, it forms second order neuron। then it relays in the thalamus, it relays in the thalamus। then from the thalamus third order neuron arises and it goes to cerebral cortex। cerebral cortex में भी कहाँ जाएगा? sensory area में। sensory area कहाँ पे है? post and somatosensory area 2। gradually we will read all these things। so for any tract you should know the receptors, you should know the first order neuron, you should know the second order neuron and you should know the third order neuron।
This is known as third order neuron. So you should know something important lines. You should remember. Like सबसे पहले तो याद रखो मिजनस कॉर्पसल. मिजनस कॉर्पसल. मिजनस कॉर्पसल यदि कभी भी पूछा जाए मिजनस कॉर्पसल, then you should be able to tell that they are present in non-hairy part. They are present in non-hairy part of the skin, and particularly present in abundance in fingertips and lips and other areas of the skin. Other areas of the skin where there is more spatial localization of touch sensation is highly developed. Okay, so it is present in the this misonous corpuscles. Misonous corpuscles क्या है? ये जो है टच के लिए है, and this is for touch, and present, they are present in non-hairy part of the skin and particularly abundant in finger tips and lips and other areas of the skin where ability to discern spatial location of touch sensation is highly developed. इसमें तुम लोग को याद रखने का है what is rapidly adapting. Rapidly adapting means they're responsive to sudden change. इसमें तुम लोग याद करो and nucleus gracilis and nucleus cuneatus. समझ में आया? तो डॉर्सल कॉलम में है, ट्रैक का नाम क्या है? fasciculus gracilis एंड fasciculus cuneatus. ठीक है, इसमें जो पाथवे कैरी हो रहा है, जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आ रहा है, जो एंटीरियर लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में क्या कर रहा था? इसी में रिले कर रहा था. इसमें फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन यहीं पे रिले कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड में. लेकिन ये डिफरेंस क्या है? ये जो ये जो और देख रहे हैं, ये जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, जो fasciculus gracilis और fasciculus cuneatus का है, ये रिले नहीं कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड में, ये जा रहा है मेडुला ऑब्लंगाटा में, जहां पे न्यूक्लियस ग्रासिलिस और न्यूक्लियस क्यूनिएटस है, वहां पे रिले करता है. सो एक डिफरेंस क्या हो गया कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो एंटीरियर लैटरल पाथवे का है, दे रिले इन स्पाइनल कॉर्ड एंड सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन इमीडिएटली क्रॉस. लेकिन जब हम लोग fasciculus gracilis या fasciculus cuneatus जब पढ़ते हैं, तो वो उसका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन इमीडिएटली रिले नहीं करता है, वो जाता है, वो ऐसे डॉर्सल कॉलम में बढ़ करके वो जाता है न्यूक्लियस ग्रासिलिस एंड न्यूक्लियस क्यूनेटस में, वहां पे ये रिले करता है और वहां से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन निकलता है और दे रिले इन द थैलेमस. सो दिस इज द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट. I think you are able to understand. फिर यहाँ से ये जाता है वही पोस्ट सेंट्रल गाइरस में, जो क्या है? सेंसरी एरिया है. तो तुम लोगों को पता चल गया होगा कि दो पाथवे जो इम्पोर्टेंट है डॉर्सल कॉलम, जिसमें fasciculus gracilis, fasciculus cuneatus पढ़ते हैं हम लोग, उसका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन रिले नहीं करता है स्पाइनल कॉर्ड में, वो ऊपर जाता है, वो रिले करता है न्यूक्लियस ग्रासिलिस एंड न्यूक्लियस क्यूनिएटस में. फिर वहां से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन निकला, तब वो सेंट्रल गाइरस में, सेकेंड, दैट इज द सेंसरी एरिया. सो you should know the difference between the, you write down, or now you have understood, so now you can write down. Before writing this, you should be able to write some more important lines. To start writing, एक तो immediately क्रॉस करता है और वो क्रॉस इन मेडुला. फिर लिखो डॉर्सल कॉलम और मिडिल लेमिनिस्कस इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज myelinated nerve fiber that transmits signal to the brain at the velocity of 30 से लेकर के 110 मीटर पर सेकेंड. तो कॉलम को जो
पाथवे है वो फास्ट उसका कंडक्शन होता है, कितना है 30 to 110 मीटर पर सेकेंड, वेयर एज द एंटीरोलैटरल पाथवे सिस्टम इज composed of smaller myelinated fiber that transmit signal at velocity ranging from few meters to जैसे 40 मीटर पर सेकेंड। कहाँ डॉर्सल कॉलम का कितना था 30 से 110 मीटर पर सेकेंड, और ये एंटीरियर लैटरल पाथवे का कितना है few meters to 40 मीटर पर सेकेंड। और लिख लो दूसरा जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, इनफैक्ट तीसरा, डॉर्सल कॉलम डैश लिखो, डैश लिख लिखो, medial lemniscal system has a high degree of spatial orientation of nerve fiber with respect to their origin, whereas anterolateral system has much less spatial orientation. These difference immediately characterize the two system. तो एक का क्या है हाई डिग्री ऑफ स्पेशल ओरिएंटेशन है और एक का है मच लेस स्पेशल ओरिएंटेशन। दैट इज सेंसरी इंफॉर्मेशन that transmitted rapidly with temporal and spatial fidelity is transmitted mainly by dorsal column medial lemniscal system. Okay, or sensation does not need transmitted rapidly, it is transmitted mainly in the anterolateral system. So roughly क्या हम लोग पढ़ लिए कि पहले तो क्रॉसिंग हम लोग को याद रखने का है कि इसका फर्स्ट एंटीरोलैटरल पाथवे का क्रॉसिंग पहले तो इमीडिएटली रिले करता है पोस्टीरियर हॉर्न में, सेकेंड ऑर्डर निकल करके सेंट्रल कैनाल के आगे वो लैटरल लेमिनिस्कस में आता है, वहां से असेंड करता है और रिले करता है थैलेमस में, फिर थैलेमस में थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन निकल करके सेंसरी एरिया में जाता है। वेयर एज fasciculus gracilis एंड fasciculus cuneatus, उसका जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है इमीडिएटली रिले नहीं करता है, वो जाता है, वो डॉर्सल कॉलम में ऊपर जाता है और कहाँ रिले करता है न्यूक्लियस ग्रासिलिस न्यूक्लियस क्यूनेटस में, फिर वहां से जो कि मेडुला में प्रेजेंट है और वहां से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन निकल करके सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन निकल करके क्रॉस करता है और ऊपर जाता है थैलेमस में, और देन फ्रॉम थैलेमस थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन अराइजेस एंड दे रिले इन सेंसरी एरिया। सेंसरी एरिया कौन है? पोस्ट सेंट्रल गाइरस, जो सेंट्रल सर्कस के पीछे में है, पेराइटल लोब में प्रेजेंट है, और सेंट्रल सर्कस के आगे में क्या है फ्रंटल लोब, और लोब एंड पेराइटल लोब को डिवाइड करता है, बीच में प्रेजेंट होता है। ओके, सो ये सेंट्रल सर्कस उनको याद रखना जरूरी है, और लैटरल सर्कस क्या करता है फ्रंटल लोब एंड पेराइटल लोब को टेम्पोरल लोब से सेपरेट करता है। ओके, दिस इज आल्सो नोन एज सिल्वियन फिशर। नाउ यू आर नोइंग द डिफरेंस। अब ये देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो है, ये जो एंटीरोलैटरल सिस्टम है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, लेकिन इसका स्पेशलाइजेशन जो हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन नहीं है इसका। ओके, और इसका जो है ये इसका सबसे पहला तो एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रहता है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ असेंडिंग ट्रैक्ट, ओरिजिन से लेकर के ऊपर तक, कोर्स एंड टर्मिनेशन तक। ऊपर से ये डॉर्सल कॉलम भी जानना जरूरी है और एंटीरोलैटरल पाथवे जानना जरूरी है। तो हम लोग स्ट्रक्चरल डिफरेंस पढ़ लिए और ये क्या क्या सेंसेशन कैरी करता है। तो जानने लायक बात है कि डॉर्सल कॉलम में टच सेंसेशन रिक्वायरिंग अ हाई डिग्री ऑफ localization of the stimulus, touch sensation requiring transmission of fine gradation of intensity, phagic sensation such as vibratory sensation. What is vibratory sensation? Vibration को कैसे define करेंगे? Rapid and repetitive sensation. What is vibration? Rapid and रिपीटेटिव, दो आर याद रखने का है, रैपिड
and repetitive sensation. So vibration क्या है? एक तो rapid होता है और repetitive होता है. Sensation that signal movement against the skin, position sensation from the joints, pressure sensation having to do with fine degrees of judgment of pressure intensity. तो ये 6 पॉइंट यू शुड बी एबल टू राइट. लिख लो, याद कर लेना, समझ तो गए ही हो. उसके बाद एंटीरोलैटरल सिस्टम में क्या क्या है? पेन, thermal sensation include both warmth and cold sensation, crude touch and pressure sensation capable only of crude localizing ability on the surface of the body, tickle and itch sensation or and sexual sensation. So I think by this time you are able to differentiate anterolateral pathway and dorsal column by location, by pathway, by function. So this is a very important Viva question, as well as it can be a Viva question, and it can be a long question also. So you should be able to know this diagram roughly. ये diagram जो है कोई simplified वाला diagram, ये दोनों pathway का तुम लोगों को जानना जरूरी है. Okay. Then coming to, और रफली हम लोग याद कर लेंगे, ये पाथवे हो गया. इसके बाद एक है ट्राइजेमिनल पाथवे. ट्राइजेमिनल पाथवे ये क्या बनाता है? ये बनाता है ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस. ऑल दो इसका इंपॉर्टेंस एनाटॉमी में ज्यादा है, लेकिन हम लोग पाथवे पढ़ रहे हैं. इट कैरीज सेंसेशन फ्रॉम द फेस. इट कैरीज सेंसेशन फ्रॉम द फेस. एंड यू ऑल नो दैट ट्राइजेमिनल इज अ मिक्स्ड नर्व. ठीक है. इसका एक मोटर न्यूक्लाई होता है और 3 सेंसरी न्यूक्लाई होता है. 3 सेंसरी न्यूक्लाई होता है. तो ये तुम लोग को जानना जरूरी है. यू ड्रॉ दिस डायग्राम और यू कैन सी दिस इन एनाटॉमी. इसमें 3 जो सेंसरी न्यूक्लियस है वो है स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ 5th नर्व. स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ 5th नर्व. उसके बाद है मेन sensory nucleus and mesencephalic nucleus. So you can see that there are 3 sensory nucleus. और ये सब कहाँ से sensation carry करता है? They carry sensation from the face. They carry sensation from the face. Spinal nucleus जो है वो उसके बारे में लिख लो. It is the nucleus of pain and it carries sensation of pain and temperature. Pain and temperature from the face and anterior half of the scalp. ये जो spinal nucleus है, it carries sensation, pain and temperature from the face and anterior half of the scalp. It extends from the mid pons. It extends from the mid pons through the medulla oblongata to the second cervical segment. तुम देख रहे हो कि ये जो स्पाइनल न्यूक्लियस है ये कितना लंबा न्यूक्लियस है. ये अराइज कर रहा है मिड पॉन्स से लेकर के सेकेंड सर्वाइकल सेगमेंट. और ये क्या करता है? इट कैरीज सेंसेशन from the face and anterior half of the scalp. Or sensation, pain and temperature. So spinal trigeminal nerve has got 3 nucleus. Spinal nucleus जो इतना mid pons से लेकर के second cervical तक extend किया और it carries pain and temperature from face and anterior half of the scalp. Now coming to main sensory nucleus, it carries touch and pressure. It carries touch and pressure. ठीक है. Then coming to mesencephalic nucleus. ये जो mesencephalic nucleus है, M से mesencephalic, M से mid brain. यहाँ पे
प्रेजेंट है। ये जो है इट कैरीज प्रो न्यूरॉन निकला, वो क्रॉस किया, फिर वो गया ऊपर में, कहाँ पे, थैलेमस में। तो हम लोग को पढ़ना पड़ता है कि थैलेमस के किस न्यूक्लियस से वो हम लोग को, और फिर हम लोग को बाद में फंक्शंस ऑफ द थैलेमस भी पढ़ना है। इसलिए इस डायग्राम को तुम लोग लिख लो। मीडियल न्यूक्लियस है, एंटीरियर न्यूक्लियस है, और इंटरनल मेडुलरी लेमिना है, और एक्सटर्नल मेडुलरी लेमिना है। याद करने लायक फिलहाल यहाँ पे देखो, ये जो वेंट्रल एंटीरियर न्यूक्लियस है, वेंट्रल लैटरल न्यूक्लियस है, एंड वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियस है। ये जो वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियस है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू, वेंट्रल पोस्टीरो मीडियल न्यूक्लियस, वेंट्रल पोस्टीरो लैटरल न्यूक्लियस, VPM एंड VPL। ये जो वेंट्रल पोस्टीरो लैटरल न्यू पाथवे एंड एंटीरो लैटरल पाथवे, VPL मतलब वेंट्रल पोस्टीरो लैटरल, और VPM में जो हम लोग पढ़े ट्राइजेमिनल पाथवे, वो रिले करता है। और ये तुम लोग जानते ही हो, मिडल MGB एंड LGB, जब हम लोग पाथवे पढ़ेंगे, ऑडिटरी पाथवे एंड ऑप्टिकल पाथवे, तब हम लोग सब ये सब जानेंगे। सो आई थिंक नाउ यू आर एबल टू say what are the ascending tract. Okay, with this I conclude my lecture. Thanks for your cooperation. Okay. Tomorrow we will read something about the pain pathway. Okay, so have a look. Okay, bye.